की, माता बेटी बाई की, गंगा माता की, गौ माता की, दुर्गा माता की, राजा रामचंद्र की, बजरंग बली की, जय श्री राम। Namaste friends and welcome to our Sunday edition of Virat Hindustan Sangam's Words of Wisdom Gyan Ganga. It's a proud moment for us today as we complete our 100th episode of this program which we started during the pandemic. As you know, we started it as a daily show on the 2nd of April 2020 on Ram Navami Day, and we carried on for a daily show up to the 31st of May, and then from 8th June we made it into a weekly program on Sunday, and thus the history of our Gyan Ganga Words of Wisdom started. And as you know, today is the 100th show. We also have on Saturdays another special show known as Legal Words of Wisdom, Nyay Gyan Ganga, which we started on the 3rd of October, which was a Saturday, and which went on for 21 series with Dr. Venkat Iyer and Dr. Swami. We also have started from the first Saturday of March the Economic Words of Wisdom, Arth Gyan Ganga with Dr. Swami and Professor Arvind Chaturvedi, and we have completed 2 episodes today. And we hope to do about 15 lectures or 15 episodes of the Economic Words of Wisdom. So it's a great day today that we have our 100th episode on a purely Sunday or Sunday or daily basis, which we started on 2nd April. We have another great event today, that is we have with us Sadhvi Uma Bharti ji and Dr. Subramaniam Swami, who will be discussing the Sri Ram Mandir movement and the importance of Hinduism and the various aspects of the movement. Dr. Swami will be in conversation of Sadhvi Uma Bharti ji. I don't have to give you an elaborate introduction of Didi Uma Bharti ji, because you all know her. She has been a member of parliament, a central minister, a state chief minister of Madhya Pradesh, MLA, MP, and in the forefront of the Ram Mandir movement. So we are very grateful that she joined us live for our show today. So I also wish to thank my co-host. I welcome Uma Bharti ji, and I also thank my co-host Professor Arvind Chaturvedi ji and Ramesh Swami, and our technical team led by Ashish Shetty, Vishal Mehta, Ishwar Iyer, Tejas Navalgul, Rakesh Gadigi, and Swaminathan for their support to put this program together. Today we owe a special thank to the VHS team of Uttarakhand by our state president led by Rajiv Gupta, who has been very kind to go and assist Sadhvi Uma Bharti ji, because she also has been traveling a lot. Last night she took a train from Bhopal to Delhi, and from Delhi she was been on the road meeting devotees and well-wishers, and she was going up to Rudraprayag, but because of
request from Dr. Swami, she had to halt at Haridwar, and this program is being beamed to you from the banks of the holy Ganga, where Uma Bharti ji is camping at the moment. So Rajiv Gupta ji has been kind enough to go with his team to meet her and receive her and help her putting the technical team together to beam this program live across the globe. I thank you viewers across the globe for your support for this 100th episode. So with these opening remarks, it is over to Dr. Subramaniam Swami, our patron president of Virat Hindustan Sangam, to start the conversation with Sadhvi Uma Bharti ji. Dhanyavad and Suswagatam once more to everybody. स्वागतम। धन्यवाद जगदीश शेट्टी। मुझे बहुत हर्ष होता है, गर्व भी होता है कि जो राम मंदिर की आंदोलन में सबसे प्रमुख और अग्रसर थे वो उमा भारती, वो सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं थे परंतु वो विचारक थे। उन्होंने लोगों की जो मंशा को बदली। और जब शुरू में तो लोग कहते थे क्या है ये राम मंदिर, ये सारी पुरानी बातें, ऐसे लोग कहते थे जो हमारी ज़्यादातर अंग्रेजी में पढ़े लिखे लोग थे। परंतु धीरे धीरे उमा भारती की जो प्रोजेक्शन हुई और अशोक सिंघल ने जो उनके लिए उनको स्नेह दिया, उनको मार्गदर्शन दिया, उसमें वो एक उभर के एक बड़ी नेता के रूप में उभर कर आई। और मैं आज कह सकता हूं कि मैंने तो सारा काम तो कोर्ट में किया, परंतु जो भूमिका बनी, जिस कारण से हम लोगों को प्रेरणा मिली कि इसमें हमें जो भी थोड़ा योगदान करना चाहिए, वो उमा भारती जैसे लोगों के योगदान के कारण उन्होंने जो देश में एक उत्साह पैदा की। उमा भारती जी अन्य कार्यों में भी हैं। इनके हमारे देश के जो महान आचार्य गुरु होते हैं वो सब इनकी प्रशंसा करते हैं। जब हम गए थे, और जगदीश शेट्टी को स्मरण होगा कि पेजावर मठ गए थे तो कितना तारीफ, इतनी प्रशंसा हमने सुनी पेजावर मठ से उमा भारती के लिए। तो वो पद के लिए तो उनको कभी परवाह नहीं किया। जब उनको लगा कि नैतिकता के आधार पर नहीं चल रही तो त्याग पत्र देकर वो निकल गए थे। और अकेला भी वो एक बार कई एमएलए को जिता कर आए थे जब एक बीजेपी की लहर चल रही थी मध्य प्रदेश में। तो इसीलिए मैं आज सबको, यहाँ हमारे लोग तो सारे जगह में बैठे हैं, दुनिया में 26 देशों में इसको सुनते हैं। विराट हिंदुस्तान संगम 5 मुद्दे पर हमने उसको खड़ा किया है। नंबर 1 कि हमारी जो असली अस्मिता है, हिंदू अस्मिता या हिंदुस्तानी अस्मिता, इसको हम उसकी परिभाषा। दूसरा है कि सही इतिहास की ज्ञान, क्योंकि सारी इतिहास जो हमें सिखाई जा रहा है सब अंग्रेज़ों ने लिखी हुई है। तीसरा है कि धीरे धीरे संस्कृत को लाना, उसमें हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाना, जो शब्द हैं वो हिंदी से हो। और सारे हिंदुस्तानी भाषाओं में हिंदी के संस्कृत के शब्द अनेक हैं। ये तमिल में भी 40% शब्द जो हैं वो संस्कृत के हैं। जब करुणानिधि इसको खंडन किया तो मैंने कहा तुम्हारा नाम ही संस्कृत है, करुणा और निधि, तो इसके लिए आपको जानना चाहिए। तो इसीलिए संस्कृत के लिए हमने बहुत जोर दिया है और कहा है कि धीरे धीरे संस्कृत बननी चाहिए हमारी देश की शिक्षा और न्यायालय के माध्यम। और फिर राम राज्य के जो हमने परिभाषा प्रस्तुत किया, वो हमने कहा कि समाज की रचना उसके आधार पर होनी चाहिए और दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद हमारी अर्थ यानी योजनाओं के आधार होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम एक राष्ट्र चेतना जगाने के लिए हमने संगठन बनाई है, बहुत फैली है, सारा देश में हमारी यूनिट्स हैं और विदेशों में भी है। तो उमा जी, आपसे हम दो स्तर पर बात आपकी विचार सुनने चाहते हैं और आपको खुला छूट है। आप सारी समय आपके लिए, मेरा तो सिर्फ आपका परिचय कराने के लिए है। और मैं भी बड़े दिलचस्पी के साथ आपके विचारों को सुनने के लिए बैठा हूँ। 2 बातें हैं जो लोग जानने चाहते हैं। एक
कि ये सारा जो आंदोलन हुआ उसके आज आप जो अनेक आयाम है उसको किस प्रकार से आप देखते हैं, कब आपको आशा हुई कि हो जाएगा, और आंदोलन में जो हुआ और जो 1999 में 1991 दिसंबर 6 तारीख को जो 1992 दिसंबर 6 तारीख को जो हुई उस घटना में, यानी जहां आप कभी यानी आप अडवाणी कोई वहाँ उत्साहित नहीं किया, तब भी एक केस चली और इतनी लंबी चली कि आखिर में आप तो तैयार थे जेल जाने के लिए। मैंने कहा नहीं, बेल लड़के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जेल जाऊंगी। इस स्तर पर हमारी सरकार होते हुए मुझे दंडित किया जाएगा तो मैं तो अपील नहीं करूंगी। यानी ये जो साहस है आपकी बड़ी सराहनीय है। और मैं कहता हूं कि आपको कब लगा कि हाँ अब तो मंदिर की बनने की ओर में हम बढ़ रहे हैं? और दूसरा है कि जो काशी विश्वनाथ है और जो मथुरा का जो कृष्ण जन्म भूमि की मंदिर है, इसको अभी तक पहले तो कहा कि पहले राम मंदिर बनने दीजिए, उसके बाद सोचेंगे। लेकिन अभी हमने फिलहाल देखा कि सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कहा है कि अब हम इन दोनों का भी लेंगे। और हम तो शुरू से कहते आए हैं कि ये 3 मंदिर हमारे लिए अहम है। तो आप बता सकते हैं हम लोगों को कि क्यों अहम है, इसमें क्या विशेष है? क्योंकि 40,000 मंदिरों को तो तोड़ दिया था मुगलों के राज में। तो इनमें से 3 चुनकर हमने कहा इन तीनों को उसका पुनरुत्थान करनी है। तो ये 3 को क्यों, और ये 2 बातों में आप हम लोगों को समझाइए। हम सब लोग बैठे हैं आपको सुनने के लिए। धन्यवाद, आप आए, इतनी व्यस्त कार्यक्रम में भी आपने समय निकाल के आए, तो हम बड़े बड़े कृतज्ञ हैं, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। उमा जी, आप बताइए, हम आपके प्रवचन को सुनने के लिए हम बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे कितना गर्व हो रहा है कि मुझे आपने बुलाया अपने कार्यक्रम में। इमरजेंसी के समय पर, जो उस समय मेरी उम्र जब इमरजेंसी लगी जिस साल, उस साल में 13 साल की थी, और जब का चुनाव हुआ तो मैं 16 साल की थी। और इस बीच में जो आपका नाम आया, उस नाम से मेरे मन में आपकी बहुत गहरी छवि अंकित हुई कि आप कितने साहसी व्यक्ति हैं, और आपने लोकतंत्र के मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। यह भी मुझे मालूम था कि आप एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, और आप दुनिया में, अमेरिका में पढ़े हुए हैं। लोग ये मानते हैं कि मॉडर्नाइज्ड होने का मतलब वेस्टर्नाइज्ड होता है, लेकिन आपने अपने अटायर से, अपने रहन सहन से ये साबित किया कि मॉडर्नाइज्ड होने का मतलब वेस्टर्नाइज्ड होना नहीं होता है। आप बिना वेस्टर्न हुए भी ज्ञानी हो सकते हैं, मॉडर्न थिंकर हो सकते हैं। उसके आप बिल्कुल जीते जागते रूप हैं। और इसलिए उस दृष्टि से मैं तो आपको हीरो वर्शिप करती रही हमेशा। मैं आपको बहुत मानती रही हूँ। हाँ, सच में। वैसे मेरे जीवन पे 3 व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ा है। एक तो हनुमान जी का, कि हनुमान जी को कोई भी प्रोजेक्ट दे तो कंप्लीट करते हैं। हनुमान जी छोड़ते नहीं है बीच में, और पूछते भी नहीं है कि क्या करना है, काम दे दिया करके आ जाएंगे। दूसरे शिवाजी महाराज से, उनने कभी भी अहंकार को महत्व नहीं दिया, विजय को महत्व दिया। तो इसलिए औरंगजेब के यहाँ पहुंचना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा, कैदी के तौर पे तो कर दिया। और तीसरे चे गुएवारा से मैं बहुत प्रभावित हुई। आपसे सॉरी, आपको आश्चर्य होगा कि मैं उनसे भी प्रभावित हुई थी। सतत संघर्ष करते रहे ना, मैंने उनको बहुत पढ़ा। लेकिन उन सब का रूप मैंने 2-3 लोगों में देखा, जिसमें आपने देखा, अडवाणी जी में देखा, और मैं बहुत प्रभावित हुई कि इन सबका कुछ ना कुछ एक अंश है जो आप लोगों में विद्यमान है, और मैं बड़ी प्रभावित हुई इन बातों से। इसलिए मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दिया। दूसरी बात यह है कि आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को सुनने के लिए साधारण व्यक्ति नहीं बैठेगा, तो जो सुन भी रहे होंगे वो भी बुद्धिमान ही होंगे, क्योंकि यहाँ जो विवेचना है वो बौद्धिक है। इसमें मतलब जिसको कहते हैं ना, मजे लेने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। इसमें तो बौद्धिक बुद्धि विलास है, जो आपके साथ बैठ करके जो बात होनी है। मैं ऐसा मानती हूँ कि हिंदू वैश्विक धर्म है, संपूर्ण विश्व का।
क्योंकि वर्तमान में हेमेटिक और सेमिटिक जो धर्म हमारे यहाँ प्रचलन में है, उनकी उनकी तिथि तय है कि वो कब से प्रारंभ हुए हैं, और वो एक जैसे रह गए, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक इष्ट और एक पूजा विधि पर रह गए। लेकिन हिंदू धर्म सारे सारे विश्व का धर्म है, मूल धर्म है, और इसने निरंतर नए नए प्रयोगों को अवसर प्रदान किया कि नए प्रयोग हमारे यहाँ हो, साधना के नए प्रयोग हो, ईश्वर प्राप्ति के नए मार्ग निकले। और इसलिए हिंदू होना यानी विश्व नागरिक होना, हिंदू होना यानी एक महान हृदय वाला व्यक्ति होना, हिंदू होना यानी सर्व समावेशी होना। ये हिंदू की एक विशेषता है, और यही कारण है, आप देखिएगा आज हमें लग रहा है कि कुछ धर्म बहुत प्रभावी हैं, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक इष्ट और एक पूजा विधि वाले, लेकिन यही कारण उनके नष्ट होने का भी बनेगा, क्योंकि यहीं से फंडामेंटलिज्म होता है। जब आप सोचने के लिए मौका नहीं देते हैं तो दम घुट जाता है, और अंत में उसका विस्फोट होता है फिर। और विस्फोट आतंकिक तरीके से भी होता है, हिंसक तरीके से भी होता है, और फिर अन्य कोई रास्ते निकलते हैं। लेकिन हिंदू धर्म ने किसी को भी पकड़ा नहीं। आप भगवान को मानते हैं तो ठीक, आप भगवान को नहीं मानते हैं तो भी ठीक है, आप एक विशिष्ट जीवन शैली को। दूसरे, इसमें बैप्टाइज नहीं होते, इसमें सुन्नत भी नहीं है, जन्मना हिंदू है, माता पिता हिंदू हैं तो वो उसकी संतान हिंदू है, और इसको मानने वाला भी व्यक्ति हिंदू है। इसलिए हिंदू होना एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति होना। इसलिए जो बात अभी आ रही थी, मैं उसको मानती हूँ कि आपको कुरान पढ़ने के लिए मुसलमान होने की जरूरत कहाँ है। तो जो ये जो लव जिहाद के खिलाफ जब कानून आया, माफ करें आप, तो मैं मानती हूँ कि हमारे देश में तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून होना चाहिए, कि इस देश में धर्म परिवर्तन हो नहीं सकता। सिर्फ बात लव और जिहाद की बात तो है कि आपको धर्म परिवर्तन क्यों करना। अगर हिंदुओं ने रोका होता मुझे कि तुम कुरान मत पढ़ो क्योंकि तुम हिंदू हो, और अगर पढ़ लोगी तो तुम हिंदू नहीं रहोगी, तुम मस्जिद में मत जाओ क्योंकि तुम हिंदू हो, और तुम जाओगी तो तुम हिंदू नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं कहा गया है। मैं मस्जिद में जा सकती हूँ, मैं फिर भी हिंदू रहूंगी। मैं कुरान पढ़ सकती हूँ, मैं फिर भी हिंदू रहूंगी। मैं अजमेर की दरगाह शरीफ पर मत्था टेकने जाती हूँ, मैं फिर भी मैं हिंदू रहती हूँ। तो अगर कुरान पढ़ने के लिए, मस्जिद में जाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, चर्च में प्रेयर करने के लिए ही ईसाई या मुसलमान बनना है, तो वो बिना बने भी आप कर सकते हो। इसलिए इसी के पीछे फिर साजिश है, यानी कि फिर बात धर्म परिवर्तन की नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म ने तो छूट दी है कि आप पढ़ो कुरान, आप पढ़ो बाइबल, आप जाओ वेटिकन सिटी। मैं खुद वेटिकन सिटी गई थी, मैंने पोप के दर्शन किए थे, खिड़की में से प्रणाम किया था, लाखों लोग खड़े थे, मैंने भी प्रणाम किया था। मुझे एक बार भी कम नहीं लगा कि आई बिकेम लेस हिंदू बिकॉज ऑफ दैट। मुझे नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि हमें तो छूट मिली हुई है। तो इसलिए ये जो धर्म परिवर्तन ही है, ये वहां के लिए शायद जरूरी होगा, जो एक ग्रंथ, एक पंथ, एक पूजा विधि को अपनाने को विवश करते होंगे, और अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो आपको दंडित करते होंगे कानून के जरिए। तो हो सकता है कि वहां पर इस प्रकार की बात आवे। यहाँ कहाँ ऐसी बात है, यहाँ तो छूट है। इसलिए असल में तो यहाँ धर्म परिवर्तन पर ही पूरी तरह से रोक होनी चाहिए। यहाँ धर्म परिवर्तन का मतलब ही नहीं है जब आपको सब कुछ जगह जाने की छूट है, सबको प्रणाम करने की छूट है, सबको नमस्कार करने की छूट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक बात। दूसरा, जो राम कृष्ण और शिव हैं, ये हमारे लिए इसलिए महत्व रखते हैं क्योंकि हम भगवान की तीनों शक्तियों को मानते हैं। आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति और आपको सुनने वाले भी जो ज्ञानी जन बैठे हैं, उनको मैंने मुझे मुझे उनको इनका महत्व बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो दूसरी बात इसमें कहना चाहती हूँ, अपनी आस्था का महत्व बताना चाहती हूँ। आप यकीन करिए डॉक्टर स्वामी, मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं सिर्फ चौथे दर्जे में पढ़ी हूँ, और चौथे की भी परीक्षा नहीं दे पाई थी मैं। तो क्योंकि मैं प्रवचन करती थी, व्हेन आई वाज 6 years old I started giving religious discourses, so I could not continue my study। तो उसके कारण घर में तो पढ़ाई हुई है, होम लर्निंग हुई है, तो मुझे बहुत ज्ञान नहीं है। तो मैं जो भी बात कहती हूँ वो सेल्फ कन्विक्शन से कहती हूँ। तो इसलिए जैसे मैं मानती हूँ, आप यकीन करिएगा, मैं मानती हूँ कि वेटिकन सिटी एक पवित्र शहर है, मैं मानती हूँ कि बाइबल एक पवित्र ग्रंथ है, और मैं मानती हूँ कि जीसस क्राइस्ट भगवान के दूत हैं। मैं मानती हूँ कि कुरान एक पवित्र ग्रंथ है। मैं मानती हूँ कि मक्का मदीना एक पवित्र स्थान है, और मैं मानती हूँ कि हजरत मोहम्मद जो है वो परमात्मा के दूत हैं। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि मौलवी और पादरी भी ये कहे कि उमा भारती के रामकृष्ण शिव भी पवित्र हैं, उमा भारती के गीता वेद और पुराण भी पवित्र हैं। जैसे मैं उनके प्रति भाव रखती हूँ कि उनके ये स्थान, उनके ये देवता, उनके ये ग्रंथ पवित्र हैं, उसी प्रकार से वो भी मेरे प्रति यही भाव रखें कि मेरे राम कृष्ण और शिव पवित्र हैं, मेरे पुराण पवित्र हैं, मेरी गीता पवित्र है, और मेरे वेद पवित्र हैं। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बच पाएगी फिर, अगर हमें सामंजस्य बना के चलना है। अब देखिए ना, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है,
जो हमें कहते हैं ना कि हमने धर्म के आधार पर विभाजन किया, तो ना तो आपने किया, ना मोदी जी ने किया, ना मैंने किया। धर्म के आधार पर जिन लोगों ने विभाजन किया, क्या इसमें सफलता मिली? आज भी ईद और दीपावली और होली पर बैरिक से हमको रिजर्व फोर्सेस को बाहर लाना पड़ता है कि नहीं लाना पड़ता है? क्यों लाना पड़ता है? क्योंकि हमें लगता है तनाव हो जाएगा। तनाव क्यों हो जाएगा? इसलिए तनाव हो जाएगा क्योंकि ताली एक हाथ से बजाने की कोशिश हो रही है। जब ताली दोनों हाथ से बजेगी तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं पांचों वक्त नमाज सुनती हूँ, इंग्लैंड में नमाज नहीं हो सकती बाहर माइक लगा के, आपको पता है। अमेरिका में नमाज नहीं हो सकती बाहर माइक लगा करके, आपको पता है। बाहर एक आदमी खड़ा नहीं हो सकता हॉल के बाहर प्रवचन सुनने के लिए। मेरे प्रवचन इंग्लैंड में बंद हो जाते थे फ्राइडे और सैटरडे को, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ जाती थी, तो पार्किंग के लिए जगह नहीं बचती थी। वहां बिना माइक, बाहर माइक नहीं लगता है मस्जिद के। जिनको सुनना होता है वो अंदर ही मतलब नमाज पढ़ रहे होते हैं। भारत में अगर मैं पांचों वक्त अजान का सुर सुनती हूँ और उस पर आपत्ति नहीं करती हूँ, तो मेरे रामनवमी के जुलूस का भी तो ये मस्जिद से बाहर निकल करके स्वागत कर सकते हैं मौलवी। और ये बात अगर मैं अपेक्षा कर रही हूँ उनसे, तभी तो दोनों हाथ से ताली बजेगी। ताली तो एक हाथ से बजेगी ही नहीं। तो फिर तो बैरक से बाहर पुलिस को लाना ही नहीं पड़ेगा, रिजर्व फोर्सेस को, कि आज निकलो क्योंकि ईद आ गया, होली आ गई, दीपावली। तो मैं ये मानती हूँ कि ये जो विषाक्त वातावरण बना, जिसमें धर्म को आधार बना करके ही, ये तो आजादी से पहले ही शुरू हो गया, लगभग कंप्रोमाइजेस शुरू हो गए। तिरंगे झंडे पे हो गए, भगवा झंडे को लेके हो गए, वंदे मातरम को लेके हो गए, और बहुत सारी, और ये परंपरा चलती रही। वो तो आप जैसे लोग हैं जो डटे रहे। मैं इसके लिए आपका वास्तव में बहुत साधुवाद करूंगी कि आप डटे रहे। अब बात आई राम जन्मभूमि की। राम जन्मभूमि में मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ व्हेन आई वाज 8 years old, व्हेन आई वाज इनवाइटेड बाय द सेंट्स फ्रॉम अयोध्या। मुझे नृत्य अपने रामचंद्र दास परमहंस जी ने बुलाया। उनने सुना कि एक बहुत छोटी बच्ची है and she gives very good religious discourses. I was not a कथावाचक, yes, I used to give discourses, तो गीता पर, रामायण पर। तो उन्होंने मुझे बुलाया and he took me to that site जहाँ ताला लगा हुआ था और रामलला अंदर बैठे थे। तो मुझे लगा कि ये तो इट्स अ ग्रेट अनजस्ट टू हिंदूज कि वो ताला भी लगा है और पूजा भी होती है। ये तो मजाक है। मुझे तो जोक लगा, ये मजाक लगा। मैं छोटी थी, मुझे लगा ऐसा कैसे हो गया। तो उनने मेरे को जो समझाया, अब बुद्धि कितनी होगी, 8 साल के बच्चे की बुद्धि कितनी होती, मैं उतनी ही समझी। उन्होंने कहा बाबर नाम, सच्ची बता रही हूँ, उन्होंने कहा बाबर नाम का बादशाह आया था और उसने यहाँ जो उसका मीर बकी नाम का सेनापति आया था, उसने यहाँ पर रामलला के मंदिर को तोड़ दिया। अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं हिंदू हूँ, सच्ची हिंदू, आप भी हो, मैं भी हूँ, तो हम मानते हैं सिया राम में सब जग जानी, ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान सब तरफ व्याप्त है, भगवान कण कण में है, राम भी कण कण में है। राम तो संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है, इसलिए राम जन्म भूमि पर ही राम है ऐसा नहीं है। तो जो लड़ाई है वो दूसरे सेंटिमेंट की थी। ये थी कि राम की जन्मभूमि पर बने हुए मंदिर को तोड़ा क्यों गया था, उसके पीछे सेंटिमेंट क्या था तोड़ने वाले का। क्योंकि अगर उसको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनानी थी तो वहां तो बहुत सारा मैदान पड़ा हुआ था, उसने वहां मस्जिद क्यों नहीं बनाई? यही मस्जिद क्यों बनाई? हमारी छाती पर कील ठोकी कि तुम हिंदुओं की ये औकात है इस देश में कि जो तुम्हारे आराध्य की जन्मभूमि है, हम उसी को तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद बनाएंगे। वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई, वो इबादत के लिए नहीं बनाई, वो हमारी बेइज्जती के लिए, हमारे अपमान के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए, हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए इसके लिए बनाई। इसलिए अगर राष्ट्रीय अपमान के लिए, मेरी उमा भारती के अपमान के लिए अगर वो इमारत बनाई, तो उमा भारती ने अपने सम्मान के लिए उस इमारत को तोड़ते हुए देखा और भव्य मंदिर के निर्माण की लड़ाई हुई। तो राम की लड़ाई नहीं थी, राष्ट्र की लड़ाई थी, राष्ट्र के सम्मान की लड़ाई थी। ये उमा भारती जैसे करोड़ों लोगों के सम्मान की लड़ाई थी। और इसलिए जब 6 दिसंबर को मैं वहां मौजूद थी और उसके बाद से लेकर के आज तक मैं अनअपोलोजेटिक रही, क्योंकि मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि वेटिकन सिटी पर जो स्थान है, अगर वहां पर कोई मस्जिद बनाएगा तो मैं लड़ने पहुंच जाऊंगी, वहां कोई मंदिर बनाएगा तो मैं लड़ने पहुंच जाऊंगी, क्योंकि ये आस्था की लड़ाई नहीं थी डॉक्टर स्वामी, ये आस्था की लड़ाई नहीं थी, ये आस्थाओं का टकराव नहीं था। मुसलमानों की आस्था मक्का मदीना में है, ईसाइयों की आस्था वेटिकन सिटी में है, और मेरी आस्था अयोध्या, मथुरा और काशी में है। तो ये आस्थाओं का टकराव बिल्कुल ही नहीं था, ये तो आत्मसम्मान का और मुझे आत्म पीड़ित करने वाले, मेरे आत्मसम्मान पर कुठाराघात करने वाले लोगों के साथ में ये लड़ाई थी। और इसमें नेहरू ने सबसे गंदा खेल खेला। आई एम सो सॉरी कि मैं नेहरू जी के बारे में ये बात कह रही हूँ। जब रामलला वहां प्रकट हुए या जो भी हुआ, आप अच्छी तरह से अवगत हो, तो उस समय पर उनको सलाह दी गई ताला भी लगा दो तो मुसलमान खुश रहेंगे,
और पूजा भी होने दो तो हिंदू खुश रहेंगे। ये हिंदू दोनों को खुश करने की जो गंदी और घिनौनी राजनीति थी, ये नेहरू जी के समय पर शुरू हुई और उसी का परिणाम निकला कि यही भारत की राजनीति को डोमिनेट कर गया। हिंदू होने पर गर्व है, ये बात कहने में लोगों को दिक्कत आने लगी हमारे देश में। मैं आज भी अडवाणी जी की प्रशंसा करूंगी, क्योंकि जब उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही थी तो मैं उनके बिल्कुल पीछे बैठी हुई थी और उन्होंने कहा कि जब कोई ईसाई कहता है कि मुझे ईसाई होने पर गर्व है, तो आप उसको प्रशंसा की नजर से देखते हो। जब कोई मुसलमान कहता है कि मुझे मुसलमान होने पर गर्व है, तो आप उसको प्रशंसा की नजर से देखते हो। लेकिन जब कोई हिंदू कहता है कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, तो आप उसको कम्युनल कहते हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। और इसलिए इसलिए उन्हें एक नया शब्द दिया, आपने देखा होगा, सूडो सेक्युलरिज्म। और उस दृष्टि से उन्हें जड़ें हिला करके रख दी अंत में, विकृत, हाँ, विकृत धर्मनिरपेक्षता की जड़ें हिला करके रख दी उन्होंने। और इसलिए राम मंदिर का निर्माण हमारे लिए एक अहम हो गया राष्ट्र की दृष्टि से। वो भगवान राम तो कण कण में व्याप्त थे, वो अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी है, मस्जिद में भी है, चर्च में भी है। लेकिन राम मंदिर को तोड़ने के पीछे का सेंटीमेंट क्या था? तो फिर बनाने के पीछे भी एक सेंटीमेंट था, आत्मसम्मान की रक्षा, बात तो वो आ गई थी। और इसलिए मैं आपको बताऊं, जब ये शुरुआत हुई तो मैं तो सोचती भी नहीं थी कि मैंने कभी अश्रु गैस नहीं देखी थी। तो जब मैं पहली बार मॉब को लीड की, वो था जब मुलायम सिंह ने कहा कि उमा भारती को हम नहीं आने देंगे, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, और आए तो उसकी टांग में गोली मार देना। तो मैंने कहा अच्छा, तुमने माँ का दूध पिया है तो मुझे रोक के देख लेना, और मैंने माँ का दूध पिया होगा तो मैं पहुंच के दिखाऊंगी। और मैं वहां पहुंची, जत्थे को लीड किया मैंने, गोलियां चली, बहुत लोग मरे, मैंने अपने सामने देखा, तड़पते हुए लोगों को देखा, मुझे इसका बहुत दुख भी हुआ। लेकिन और मैं भी मरने को तैयार थी। और वो टीयर गैस की जब छोड़ रहे थे तो मैं समझी शायद गोली मार रहे हैं मुझे। तो मैं तो आंखें बंद करके बैठी थी कि अरे अयोध्या, देखिए मरना तो है ही, अस्पताल में मरना है, घर में मरना है, सड़क पर एक्सीडेंट से मरना है। सच्ची में अमरता कौन लिखवा के लाया है? अयोध्या की गलियों में मर जाना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी? मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, राम के लिए मर जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। अयोध्या का आंदोलन हुआ, मेरे ये वो जो मोमेंट आया था ना, मोमेंट व्हेन यू फील दैट यू हैव अराइव्ड, मैं वो आपको बताना चाहती। वो मोमेंट तो मुझे उस दिन आ गया जिस दिन 3 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि जो बीच का स्थान है वो रामलला का है। बस वो एक मोमेंट था जब मैं सुन करके बिल्कुल प्रसन्नता से भर उठी, क्योंकि उसके बाद उसी चीज को जब चैलेंज किया गया कि आपका दखल हुआ, आपने जिस प्रकार से बात फिर आगे बढ़ाई, आपने वैधानिक लड़ाई लड़ी, और शायद दुनिया में पहला मंदिर है जो जैसे वेटिकन सिटी पर कानून की मुहर थोड़ा ना है, मक्का मदीना पर कानून की मुहर नहीं है, आस्था की मुहर है। लेकिन यहाँ पर कानून और आस्था दोनों की मुहर है, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। और उस आस्था की मुहर में अशोक सिंघल जी की भूमिका रही, और कानून की मुहर में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और इसलिए आप और अशोक सिंघल जी मेरे लिए दोनों बहुत बड़े मसीहा हो और बहुत बड़े प्रेरणा के बिंदु हो। अब मैं अंतिम बात पे आ रही हूँ। जब मेरे राम मंदिर का शिलान्यास होते देखा तो ये सवाल टीवी पे शुरू हो गया, आपको निमंत्रण मिला कि नहीं, आपको निमंत्रण दिया गया कि नहीं? आपको याद होगा उस समय हमारे लिए ये चीजें इररिलेवेंट हो चुकी थी, राइट। क्योंकि उसमें कई बार शिलान्यास हो चुका था। एक बार बूटा सिंह जी करवा चुके थे, एक हाँ, बार अशोक सिंघल जी हम लोगों को साथ बिठा के करवा चुके थे, आपको हाँ, स्मरण होगा पूरा का पूरा। हमारे लिए इन सब चीजों का कोई महत्व ही नहीं था कि हम वहां पर हैं या नहीं। हम तो इस चीज को देखना चाहते थे कि मंदिर के निर्माण में कोई अड़चन तो नहीं आ रही है। और राष्ट्र की आत्मा का मैं वास्तव में अभिनंदन करूंगी कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस देश के लोगों ने सुना, और उसकी पूरी दुनिया में भारत की छवि बहुत अच्छी हुई। क्योंकि लोग यही सोचते थे कि भारत के लोग लड़ते ही रहते हैं धर्म के नाम पर। भारत की 2-3 बातों में बहुत बदनामी है, एक महिलाओं को नीचा दिखाने में, दूसरा दहेज प्रथा में, आपने देखा होगा डावरी डेथ में बहुत ज्यादा करते हैं, बाहर बहुत चर्चा होती है, और धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े की चर्चा, जबकि हमारे यहाँ सबसे कम है। अमेरिका में खान शब्द अगर लगा होगा तो पूरे कपड़े उतार के चेक करेंगे आपको, पूरे कपड़े उतार के। और यहाँ खान लगा होगा तो मैं भी संभल के बैठ जाऊंगी कि चाचा बोलना है या भाईजान बोलना है, क्योंकि हमको ये कहा गया है कि हमें उनको सम्मान के साथ बोलना है, क्योंकि हमने तय किया था कि हम सेक्युलर स्टेट रहेंगे, यानी सर्वधर्म समभाव का स्टेट रहेंगे, और इसलिए हम सबका सम्मान करेंगे इस देश के अंदर। तो वो भाव हमारे अंदर इतना बिठाया गया और उसका टेरर ही बिठा दिया गया हमारे अंदर कि सेक्युलर स्टेट का मतलब है कि हिंदू की संख्या भले ही ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई एम सो सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, जैसे केंचुओं की संख्या बहुत होती है, लेकिन डरते नहीं है लोग उनसे, उन पर पांव रख के चले जाते हैं। और एक पतला सा भी पानी का सांप होएगा तो लोग उससे डर जाते हैं। केंचुआ पंचमी नहीं होती, नाग पंचमी होती है। तो इसलिए ऐसा माहौल बना दिया गया था यहाँ पर।
और उसके कारण स्थितियां ऐसी बन गई कि मेरे को आश्चर्य हुआ, गर्व हुआ अपने राष्ट्र की एकात्मता के ऊपर, जिस प्रकार से लोगों ने फैसले को सुना। तो हमारे लिए तो गर्व का दिन, संतोष का दिन तब बहुत। और एक बात मैं जानती थी कि राम जन्मभूमि पर असदुद्दीन ओवैसी भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो मस्जिद नहीं बना सकते, मंदिर ही बनेगा, मस्जिद नहीं बन सकती, सही बात है, सही मंदिर ही बात है। बनेगा वहां। आई हैड दिस बिलीफ कि वहां जब बनेगा मंदिर ही बनेगा। तो इसलिए कोई व्याकुलता मेरे अंदर में, ईमानदारी से कन्फेस करूं आपको, तो मेरे अंदर कोई व्याकुलता नहीं रह गई थी। बस ये था कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण मुझे देखने को मिले। मुझे राम सेतु की व्याकुलता बहुत हुई थी डॉक्टर स्वामी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर राम सेतु टूट गया किसी वजह से, ये समुद्रम परियोजना में, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारी संस्कृति का और हमारी सभ्यता का। और इसके लिए मैं पूरी दुनिया के सामने आपका अभिनंदन करूंगी, मैं तो आपकी आरती उतारूंगी कि अशोक जी सिंघल जी ने और आपने, सब लोगों ने मिलकर के जैसे प्रयास किया, और आपकी प्रेरणा से मैं खुद वहां पर, मैंने बहुत बड़ा एक भीड़ लेके मैं पहुंची और पूरे रामेश्वरम में हम घूमे। और आपने तो बहुत बड़ा काम किया, और अंत में सरकार की थुक्का फजीती हुई उसमें, और इसलिए उस समय की यूपीए की सरकार की। तो इसलिए मुझे ये पता था कि वहां तो मंदिर ही बनना है, लेकिन जल्दी बन गया, आप समझ गए, प्रेम से बन गया, आनंद से बन गया। इसमें इसका रेलिवेंस कहाँ था कि उमा भारती को निमंत्रण मिलता है कि नहीं मिलता है, इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं था। सो आई एम वेरी हैप्पी राइट करेक्ट, नाउ, खुश हूँ। करेक्ट। और मैं मानती हूँ कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो यहाँ दूसरे धर्म के लोग नहीं रह सकते थे। आज दूसरे धर्म के लोग जितने सम्मान के साथ यहाँ रहते हैं, पारसियों की संख्या कितनी कम है, लेकिन आज वो जितने सम्मान के साथ रहते हैं, उनकी आग आज तक सुरक्षित है। और इसलिए ये वो देश है जो सबको इतने सम्मान के साथ में रखता है, सबका इतना आदर करता है। तो ये देश इसलिए सेकुलर है क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो सेकुलर पाकिस्तान सेकुलर नहीं है, बांग्लादेश सेकुलर नहीं है, अन्य धर्मों से डोमिनेटेड जो कंट्रीज हैं, खास करके इस्लामिक डोमिनेशन में जो है, वो सेकुलर नहीं है। ये देश, ये इनको समझ ही नहीं है, मुलायम सिंह को, ममता बनर्जी हमारी दीदी को, और बाकी के जो लोग हैं, अखिलेश को, इनको, कि तुम कालिदास हो गए हो, जिस पेड़ पे बैठे हो उसकी जड़ पे कुल्हाड़ी चला रहे हो। ये देश सेकुलर इसलिए है क्योंकि तुम हिंदू हो, इसलिए तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो। अखिलेश इसलिए इतनी बड़ी बात बोल रहा है, ममता इतनी बड़ी बात बोल पाती है, मुलायम सिंह, लालू यादव इसलिए बड़ी बात बोल पाते हैं क्योंकि वो हिंदू हैं, इसलिए वो इतनी बड़ी बात बोल पाते हैं। इसमें आपको एक उदाहरण दूंगी और अपनी बात खत्म करूंगी। एक दिन में वो एक बहुत, मेरे जैसी एक मोटी सी गायिका है, वहां की, पाकिस्तान की, बहुत अच्छा गाती हैं वो, तो वो कबीर दास के वो सुना रही थी वो, तो उसमें, जिसमें कि कबीर दास ने रूढ़ियों पर, परंपराओं पर प्रहार किया है। लेकिन मैंने एक चीज नोट की डॉक्टर साहब, मैं उनको बहुत गौर से सुन रही थी, और सुनते सुनते उनने वो दोहा नहीं बोला कबीरदास का, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दी बनाए, और क्या बहरा हुआ खुदाए, मुल्ला बांग दे रहा क्या बहरा हुआ खुदाए, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना दी है, और मुल्ला बांग क्यों दे रहा है, क्या खुदा बहरा हो गया। उसने वो सारे दोहे गाए जिसमें हिंदुओं का मजाक बनाया गया, लेकिन जैसे ये बात आई उसने छोड़ दिया। इसी प्रकार से मैं फैज अहमद फैज की बड़ी प्रशंसक थी, लेकिन, और मैं उनके शेर, और खास करके वो जो है ना, लौट के जाती है उधर को नजर भी क्या कीजिए, अभी तक दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, मतलब दुनिया में गरीबी है, लोग चित्रों में रह रहे हैं, गरीबी और भूखमरी में। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद डॉक्टर फैज। लेकिन जब मैंने सुना कि उन्होंने अपनी पत्नी का धर्मांतरण करवाया, वो एक विदेशी महिला थी, और उनका धर्म, आपने रुखसाना दीदी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया, रुखसाना राइट, पारसी रही, आप राइट, हिंदू रहे, आपको राइट, हिंदुत्व पर गर्व रहा, उनको राइट, पारसी होने पर गर्व रहा, और आप दोनों राइट, ने कितने प्यार से अपनी जिंदगी बिताई है। तो ऐसा राइट। फैज अहमद फैज क्यों नहीं कर सके, अगर वो कम्युनिस्ट थे तो धर्म तो उनके लिए इररिलेवेंट था। इसका मतलब ये कम्युनिस्ट भी हो जाएंगे, लेकिन ये इस चीज को छोड़ते नहीं, अपनी संकीर्णता को नहीं छोड़ते हैं। और हम लोग जो हैं, हम हैं जो उदारवादी, तो ये देश इसलिए सेकुलर है क्योंकि ये देश हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र होना ही इसकी सेकुलरिज्म की आधारशिला है, सर्वधर्म संभाव की आधारशिला है, मैं ऐसा मानती हूँ। और अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे बातें बहुत अच्छी हो गई हैं, लोगों को समझ में आ गया है, मुसलमानों को भी ये बात समझ में अब आ गई है कि अगर हम सरकार में होते हैं तो हम उनके लिए कोई संकट नहीं होते, हम उनके लिए कोई खतरा नहीं होते हैं, हम अपनी सारी योजनाओं से उनको लाभ पहुंचाते हैं। उनकी समझ में आ गया है कि बेईमान दोस्त से ईमानदार दुश्मन ज्यादा भरोसे का होता है। हम उनको दुश्मन लगते थे, लेकिन हम उनके प्रति सिंसियर रहे, हमने उनका ध्यान रखा, लेकिन हम अपीजमेंट नहीं करेंगे, ये भी उनकी समझ में आ गया, और एक एक अच्छा वातावरण है तो देश के अंदर बना है। लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन में, आंदोलन को बनाने में अशोक सिंघल जी की भूमिका रही, और आंदोलन की जो वैधानिक प्रक्रिया थी
उसमें आपकी भूमिका रही सर बहुत बड़ी। और राम सेतु के लिए तो बहुत बड़ा संकट था, जैसे गंगा के लिए है। मैं गंगा को लेके बहुत चिंतित रहती हूँ। हाँ, इसलिए मैंने चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि मैं चाहती थी 2016 में गंगा को बचाए रखने के लिए जितनी स्कीम बनाई जा सकती थी मैंने बना दी थी। 20,000 करोड़ की फंडिंग का जैसा डिस्ट्रीब्यूशन करना था करके कैबिनेट का अप्रूवल ले लिया था। लेकिन मुझे लगा कि गंगा सरकार की बनाई हुई नहर नहीं है जो सरकार से मॉनिटर होगी। इसमें तो प्रतिदिन 20 लाख लोग स्नान करते हैं, एवरेज है ये। तो ऐसी इस स्थान के लिए तो लोक जागरण और संतों के अंदर इसको ठीक रखने की इच्छा हो ज्यादा जरूरी है। दूसरी, गंगा की अविरलता बहुत जरूरी है। ये समझाना मुझे बहुत मुश्किल हो गया। यहाँ 72 पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित थे उत्तराखंड में, और ये मुझे समझाना बहुत मुश्किल हो गया। अब मैं आपको राम जन्मभूमि और गंगा से थोड़ा सा कंपेरिजन करके अपनी बात खत्म करूंगी। कि राम की जन्मभूमि पर रामलला बैठे हुए थे। ढांचा 6 दिसंबर को गिर चुका था, मेरी आंखों के सामने गिरा था, मैं वहां मौजूद थी। मैं अपोलॉजी नहीं कर रही थी, मैं फांसी पे चढ़ जाने को तैयार थी, लेकिन रिपेंट भी करने को तैयार नहीं थी। और मुझे ये भी पता था कि यहाँ कभी भी मस्जिद नहीं बनेगी, चाहे 1000 साल तक रामलला यहाँ ऐसे बैठे रहे, ये मेरा यकीन था। लेकिन अगर यहाँ गंगा को रोकने वाले प्रोजेक्ट बन गए तो ये नहीं टूटेंगे, फिर गंगा खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, उसकी भ्रूण हत्या हो जाएगी। यही उसकी भ्रूण हत्या हो जाएगी उत्तराखंड में। और यही लड़ाई का अंत में बहुत बड़ी लड़ाई का कारण बनी, एक अंदरूनी लड़ाई का, जिसकी मैं बाहर कभी चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि कौशल्या जी ने इसके साथ खत्म कर रही हूँ। जब सीता जी को आशीर्वाद दिया था डॉक्टर स्वामी, तो कहा था उन्होंने, अचल रहे अहिबात तुम्हारा, जब लग गंग जमन जलधारा। जब तक गंगा और जमुना की जलधारा रहेगी तब तक तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहेगा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि राम की जितनी चिंता आपको है और राम सेतु की जितनी चिंता आपको थी, आपको गंगा की चिंता करनी पड़ेगी। अगर गंगा की धारा सूख गई तो राम का नाम भी नहीं रहेगा। और अभी मेरा पूरा का पूरा बिल्कुल मेरे अंदर गंगा ही बहती है, खून नहीं बहता है। इसी में लगी रहती हूँ रात दिन। आपसे ही तो सीखा है मैंने, लगे रहना। आप में मैंने कई खूबियां देखी हैं। आप बहुत प्रसन्न व्यक्ति हैं, बहुत प्रसन्न। और आपकी जो प्रसन्नता है उसमें ऊर्जा है, ऊर्जा और प्रसन्नता और ज्ञान, इन तीनों का आपके अंदर मेल रहता है। और मैंने ये देखा है कि आप किसी के भी सामने बैठ जाएं तो वो छोटा महसूस करने लग जाता है, और आप अपने आप को बड़ा महसूस कराने की कोई चेष्टा नहीं करते। मतलब आपकी तरफ से कोई चेष्टा ऐसी नहीं होगी कि दूसरा आपके सामने छोटा महसूस करे, लेकिन आपके बैठने भर से सामने वाले को लगेगा कि मैं छोटा हूँ। तो ऐसा लगता है जैसे साधो सहज समाधि भली। सच में आप सहज समाधि वाले व्यक्ति हैं, सहज प्रसन्न, ज्ञान से भरपूर, समुद्र की तरह ज्ञान आपके अंदर उछाले मार रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आपके ज्ञान का ये देश जितना उपयोग कर सकता था, आपने अपने कंट्रीब्यूशन के जरिए वो किया, लेकिन और संस्थाओं के द्वारा संस्थागत तरीके से जो इसका उपयोग हो सकता था उतना नहीं हो पाया। लेकिन हो सकता है नियत यही हो, राष्ट्र की नियत यही हो, मैं ऐसा मानती बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उमा जी, अभी जो थोड़ा समय आप दे दें, और ये काशी विश्वनाथ और जो मथुरा का है उसके बारे थोड़ी विशेषता हमारे लोगों को बता दें, क्योंकि हमारे ज़्यादातर दर्शक जो हैं वो युवा हैं, बहुत कम है, नहीं 25 साल से कम है अधिकांश, और 35 से कोई ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसे लोग सीखने के मूड में हैं जो हमारी पाठशाला में और ये विश्वविद्यालय में नहीं सिखाया जाता है। तो आप थोड़ा ये काशी विश्वनाथ और जो मथुरा का मंदिर को पुनर्निर्माण करने के लिए क्या कारण है, थोड़ी आप संक्षेप में बता दीजिए, क्योंकि आपका समय हम बहुत नहीं लेने चाहते हैं। मैं तो आपके कहने पे पूरी जिंदगी लगा दूंगी, लेकिन हाँ फिर भी आप कह रहे हैं कि तो आपका भी समय की सीमा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मुझे मथुरा, काशी और इसका अयोध्या का ऐसे अलग से महत्व बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक ही काशी को ये माना गया है कि जब शंकर जी का विवाह हुआ, और फिर उसके बाद में इसकी अन्य बातें बता दूंगी एक एक मिनट में। विवाह हुआ तो वो अधिकतर हिमालय में रहते थे, तो पार्वती जी ने कहा कि तुम हमेशा ससुराल में बने रहते हो तो मेरी बहनें हंसी उड़ाती हैं, तो हमारे लिए कोई अलग से शहर बनाओ। तो उन्होंने त्रिशूल की नोक पे काशी को बनाया, इसलिए काशी को तीनों लोक से न्यारा बताया गया है। और ये माना गया है कि शिव जी के त्रिशूल के ऊपर ये टिकी हुई है काशी, और इसलिए ये अपने आप में बहुत विशिष्ट स्थान है संसार का। इसी प्रकार से मथुरा जो है वो वृंदावन से लगा हुआ है, और कृष्ण ने पहले वहीं पर राज्य की स्थापना की। और विशेषता कृष्ण की ये थी कि कंस को उन्होंने पराजित किया, वो स्वयं राजा नहीं बने, बल्कि उन्होंने वहां पर अपने जो दादाजी थे
या शायद नाना जी थे, उनको उग्र सिंह जी को, उनको राजा उन्होंने वहां पे बनाया था। तो फिर तो अंत में विचारों की स्थिति ये हो गई थी कि उनको मथुरा छोड़ करके जाना पड़ा था, आपको स्थिति मालूम होगी। लेकिन मथुरा की यही विशेषता रही। अब मैं दूसरी बात पे आ रही हूँ, अगर आपको स्मरण हो तो एक एग्रीमेंट हुआ था। वो एग्रीमेंट ये था कि मथुरा की मस्जिद को ज्यों का त्यों रहने दिया जाएगा, इसको गिराया नहीं जाएगा, क्योंकि राम की जन्मभूमि पर तो पुरातत्व विभाग को खुदाई करनी पड़ी प्रमाण ढूंढने के लिए। और इसलिए मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि जिस 6 दिसंबर की घटना के लिए सीबीआई हमको अपराधी प्रमाणित कर रही थी, उसी आपराधिक कृत्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे थे। अजीब बात है। अगर 6 दिसंबर के लिए, क्योंकि तब तक तो सीबीआई ने हमको इनोसेंट डिक्लेयर नहीं किया ना ऑन दैट डे व्हेन द प्राइम मिनिस्टर वाज डूइंग दैट शिलान्यास, दैट डे तो आई वाज ए क्रिमिनल ना, सिटिंग देयर चार्जशीटेड। अच्छा, और कमाल ये है कि मैं जिसके लिए अपराधी हूँ, उसी का शिलान्यास, उसी की पूजा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये अजीब बात है। तो वहाँ विडम्बना। हाँ, मैडम ना। अच्छा, वो ढांचा अगर नहीं गिरता तो सबूत भी नहीं मिलने थे। तो बिल्कुल। असली हीरो तो वो है जो वो कार सेवक जिनके नाम आज तक सामने नहीं आ पाए हैं, या आप जैसे लोग, अशोक सिंघल जी जैसे हाँ, लोग हैं। मथुरा और काशी में तो प्रमाण सामने है, दिखता हाँ, है। दिखता काशी है। में तो मूर्तियां दिखती हैं, नंदी भी उसी तरफ मुंह किए हुए है। दैट्स काशी राइट। में तो दीवार के अंदर प्रतिमाएं हैं। तो दैट्स स्वाभाविक स्वेच्छा से ही मुस्लिम समाज को वो छोड़ देना चाहिए। यहाँ के मुसलमान अगर मुसलसल ईमान रखते हैं, इस्लाम को अगर मानते हैं, तो जिसके अंदर मूर्तियां लगी हैं वहां पर राइट। नमाज पढ़ना हराम है। वो हाँ, मुसलमान की करेक्ट। परंपरा के अनुरूप नहीं है, वहां नमाज नहीं हो सकती है अगर दूसरे के धर्म स्थान को तोड़ के बनाया गया है तो। और दैट्स राइट, इसलिए करेक्ट। ये तय हुआ था कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, वो आपको याद होगा, वो जब एग्रीमेंट हुआ था, वो डेट आपको याद रहेगी, उसके लिए मेरे जैसा मूर्ख आदमी नहीं बता पाएगा, वो आपको याद होगी कि अयोध्या, मथुरा और काशी की जो मस्जिदें हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा। और जब वो स्वाभाविक रूप से गिर जाएंगी तो वो हिंदू समाज पर उसमें अपने मन का निर्माण कर लेगा। ये बात तय हो चुकी है, आज से मुझे लगता है करीब 60-70 साल पहले तय हो चुकी। लेकिन हाँ, इसके बाद में भी इस बात को माना 66। नहीं गया, इसको नहीं माना गया है। और जो धर्मस्थली विधेयक आया था, जब आपको याद होगा 1991 में पार्लियामेंट में, तो दैट्स राइट। जी हाँ, मेरी पार्टी की तरफ से मेरी ही प्रमुख वक्ता थी। तो उसमें ये प्रश्न आया था कि जो जैसा है वैसा छोड़ दिया जाए, क्योंकि तब तक ढांचे को गिराने की तैयारी शुरू हो गई थी। तो ये आ गया था कि जो जैसा है वो वैसा छोड़ दिया जाए। तो उस समय भी मैंने एक बात पार्लियामेंट में कही थी, और वो मैं आज भी कह रही हूँ, कि अगर इस देश में ईमानदारी से हिंदू और मुसलमान को सुख से रहने का मौका देना है, तो मुस्लिम आक्रांताओं की यादों को ध्वस्त करना पड़ेगा। जब तक हमें ये याद रहेगा कि हमारे आस्था के स्थानों का अपमान किया गया था, वहां लाखों लोगों के वध किए गए थे, उनके खून में चूना सान करके वो स्थान बनाए गए थे, तो प्यार नहीं पनप पाएगा। इसलिए ये जो 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिसमें एक अयोध्या थी, दूसरे मथुरा और काशी हैं, इन स्थानों का समाधान उसी एग्रीमेंट के अनुरूप, उसी के अनुसार अगर हो जाएगा शांति से, तो जरूरत ही नहीं है किसी अन्य चीज की, इतने में ही हो जाएगा। और नहीं तो मुझे लगता है डॉक्टर स्वामी आप करवा लेंगे, आई बिलीव इन यू। नहीं, मैं तो वैसे वो जो 91 की जो एक्ट है जिसका आपने विरोध किया, उसको तो मैंने चुनौती दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में। अप्रैल 30 को आएगा सुनवाई के लिए, और उसमें हम जीत जाएंगे। और मैं तो इतना ही कहता हूं कि आपने उस एक्ट में कहा कि राम जन्मभूमि को छोड़कर बाकी किसी जगह में जहां जो खड़ी थी वो खड़ी रहेगी। मैंने कहा कि 2 और जोड़ दो, नहीं तो फिर अब बाद में कोई भविष्य में कोई सरकार 40,000 जिसको तोड़े गए थे सबको वापस करने के लिए बात शुरू हो जाएगी। बट इन तीनों के लिए जो विशेषता आज ने आपने बताई है, ये आम जनता को नहीं पता है। तो एक बार पता लग जाएगी तो फिर हम कहेंगे 3 ही जो हमने चुना है, उसके कारण पीछे ये है कि इनकी जो एक तो ज्योतिर्लिंग की है और एक है जन्मस्थान, और इन तीनों को छोड़कर बाकी चीज़ों को भूलने के लिए तैयार है। हम तो वैसे भी मंदिर दूसरी जगहों में बना सकते हैं, क्योंकि उसमें वो विशेषता नहीं होगी कि यहाँ पैदा हुए या शिव भगवान ने अपनी ज्योतिर्लिंग वहाँ स्थापित की। तो आपने कर दिया, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे और भी लोग हैं, सब बड़े सवाल पूछ रहे हैं, बट 4-5 सवाल सुन लीजिए और उनके जवाब दे दीजिए। अरविंद, आप कुछ कहना चाहते हैं? अरविंद प्राध्यापक हैं।
मैं उमा जी से ये पूछना चाहता हूं कि जिस शिद्दत से, जिस भावना से उन्होंने गंगा के लिए कार्य किया है, अब उन्होंने गंगा की जो मंत्रालय है उसका उन्होंने छोड़ दिया और दूसरों के हवाले कर दिया। यदि आप उस काम में लगी रहती तो शायद ये काम जल्दी हो जाता, क्योंकि आपकी जो पवित्र भावनाएं थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं दूसरों में नहीं है, लेकिन जो आपने एक मूवमेंट शुरू किया था, एक आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन को आप अभी भी गति प्रदान करें। ये मेरा एक अनुरोध है, सवाल नहीं है, अनुरोध है। मुझे तो सॉरी, माफ करिए, आप मेरे लिए बड़े सम्मानीय हैं। मुझे तो ये लगता है कि गंगा का मंत्री ही मुझे नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनको समझाने में इतनी थक गई। जैसे आप 100 मेड को लग करके नहीं तोल सकते, एक को पकड़ेंगे तो दूसरा कूद जाएगा नीचे, आप मेढकों को नहीं तोल सकते। इसी प्रकार से 5 राज्यों को, 11 विभागों को पूरे समय संभालना और समझाना, उसकी जगह पर जन दबाव जब पड़ता है तो जो चीज सालों में नहीं होती वो मिनटों में हो जाती है। तो मेरा इरादा तो वो था, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, मंत्री बनूं, और गंगा का मंत्रालय उन्होंने बनाया, और प्रधानमंत्री जी की गंगा पर आस्था है। लेकिन आप जो कह रहे हैं, मैं ऐसा मानती हूँ कि गंगा मूलतः जन समुदाय की धारा है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कुंभ में जब स्नान होता है तो आप देखिए। और मैंने मंत्री होकर के आपको बताऊं, मैंने देखा कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग इसमें भी कमाई करना चाहते थे, और मैंने उनको कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, ये माँ है तुम्हारी, और तुम यहाँ भी इतना 300 गुना प्रॉफिट कमाना चाहते हो। ये थोड़ा ना गंगा बचाएंगे। गंगा तो वो बचाते हैं करोड़ों लोग जो गर्मी में, सर्दी में लाइन में लगते हैं, चवन्नी अठन्नी गांठ में बांधे होते हैं, 10-10 20-20 किलोमीटर पैदल चलते हैं, सत्तू बांध करके, और गंगा के किनारे दान करके चले आते हैं। और ये तो वो लोग हैं जो गंगा से मतलब कमाई करना चाहते हैं। इसलिए मैं तो बिल्कुल खुश नहीं थी। प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी, उन्होंने मंत्रालय बनाया था, तो मैंने 20,000 करोड़ की बहुत अच्छी फंडिंग कर दी थी, और एक एक करके धीरे धीरे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन मूलतः तो गंगा जन समाज की नदी थी। मुझे एक भी घड़ी के लिए पश्चाताप नहीं होता है कि मैंने मंत्रालय छोड़ा। हाँ, तो आपने तो मुख्यमंत्री पद ही छोड़ दी, तो मंत्री क्या होता है? तिरंगा बड़ा होता है ना डॉक्टर स्वामी, आपसे सीखा ना। आपने जान की बाजी लगा दी हाँ इमरजेंसी के समय पर, लगाई ना आपने हाँ, लोकतंत्र के लिए। तो आपसे ही तो बिल्कुल। सीखा है, यू आर माई हीरो। आपसे सीखा है कि जिंदगी बड़ी नहीं होती है, तिरंगा बड़ा होता है। कारगिल में क्या घास भी नहीं उगती थी, लेकिन कारगिल पे हमारा झंडा उखाड़ दिया गया, पाकिस्तान का झंडा लग गया, सिर्फ इसके हाँ लिए हमने अपने बहादुर जवानों की बलि चढ़ा दी इस बात के लिए। तो तिरंगा हमारे लिए महत्वपूर्ण था, बात ये थी। और जो रामकृष्ण शिव की बात आपने कही, मुझे लगा सब जानते ही हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग वहां पर है, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि राम, कृष्ण और शिव, ये तीनों ही तो हमारे पवित्र देव हैं, और ये तीनों के ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा हमारे, देखिए, हिंदू का दिल तो इतना बड़ा होता है कि उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। आप यकीन करो, आज आपके माध्यम से अगर मेरी बात ये पहुंच जाए, मैं पहले भी कहती रही, अगर मुस्लिम समाज स्वयं आगे आ जाए और ये कह दे कि ठीक है, हमने मथुरा और काशी से अपना दावा छोड़ा, तो आप देखिएगा हिंदू अपना जिगर निकाल करके दे देंगे मुस्लिम समाज के लोगों को। करेक्ट, ऐसी स्थिति बनेगी। करेक्ट। मैं तो ये भी कहता हूँ, मुसलमान के सारे पूर्वज तो जेनेटिक्स के अनुसार और डीएनए के अनुसार सब हिंदू ही है। माने वो तो हिंदुओं से ही आया है, तो अपने पूर्वज के थोड़ा ख्याल करके इन दोनों को छोड़ देना चाहिए, इन दोनों स्थानों को छोड़ देना चाहिए। तो इसमें आ, शंका किसको हो सकती है, कैसे शंका हो सकती है? क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब कितने वर्ष के हैं, जीसस क्राइस्ट कितने वर्ष के हैं, तो उसके पहले क्या मानव सभ्यता नहीं थी? उसके पहले भी मानव सभ्यता थी। और कृष्ण की गीता ही, महाभारत ही 5,000 साल का है, ये मानते हैं लोग, मतलब वो भी कम से मानते कम। हैं जो हमें हाँ गालियां देते हैं, वो भी कम हाँ, से कम इस बात को तो मान लेते हैं। इसलिए तो ये तो that's it, स्वाभाविक सी बात है कि इस देश that's के it, मुसलमानों के और इस देश के ईसाइयों के पूर्वज भगवान राम ही हैं। इसमें तो कोई that's नहीं right. नहीं। Jagdish, you want to say, So, ask any Dr. question? Swami, go ahead. I'll take you last. Okay. Ramesh is having a question. No, go ahead, Jagdish. You go ahead. No. Dr. Swami said this last. दीदी जी, आपने तो कुछ शब्दों में कह दिया, मगर आप एक साध्वी है, एक राजनेता है, और आपने एमएलए रह चुके हैं, एमपी रह चुके, मिनिस्टर रह चुके, मुख्यमंत्री रह चुके। आपके जो कामकाज में आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि एक सिद्धांत की लड़ाई है और मैं हिंदुत्व के लिए लड़ रही हूं, और यहाँ एक ब्यूरोक्रेसी और देश का सवाल है, तो आप जब प्रायोरिटी किसको देती है, जब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट
आ जाता है। आपने जरूर कहा है गंगा के बारे में, फिर आपने मंत्रालय छोड़ दिया, मगर आपके लाइफ में कभी कभी ऐसा संघर्ष होता होगा कि मैं हिंदुत्व के लिए या न्याय के लिए लड़ूं या पद के लिए लड़ूं, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता तो जब आप क्या करती हो? मैं 2-3 बातें क्लियर कर दूं, मैंने मंत्रालय छोड़ा नहीं था, मेरा पोर्टफोलियो बदला गया था। और अच्छा। उसका जो मुख्य कारण था, जो मैं नहीं बताना चाहती थी, कि एक एफिडेविट था जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया था गंगा के बारे में, कि गंगा की धारा को अविरल बनाए रहना चाहिए और गंगा पे कोई भी ऐसा पावर प्रोजेक्ट नहीं लगना चाहिए जो गंगा की धारा को रोक देता हो। और मैंने तो ये भी कहा था कि इसकी जांच बिठाइए कि इनको मंजूरी कैसे मिल गई इन प्रोजेक्ट को, क्योंकि इसमें तो जो वाइल्ड लाइफ होती है, एक्वा लाइफ होती है, वो भी संकट में पड़ गई। और ये करीब 40-50 हजार करोड़ का निवेश था। और आज आपको अगर पता हो, भू माफिया, पावर माफिया, कंस्ट्रक्शन माफिया, खनन माफिया, ये इतने प्रभावी हो गए हैं। और ये वास्तव में सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं, यानी सब पार्टियों के लोग इनकी जेब में रहते हैं। हाँ, और हाँ, ये वैश्विक एकता वाले लोग, यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाले लोग हैं ये। और इसलिए इन लोगों ने जिस प्रकार का माहौल बना दिया, और उसका अंत में परिणाम ये हुआ कि मेरा पोर्टफोलियो बदल गया। लेकिन तब भी मैंने गंगा छोड़ी नहीं। जो गंगा के किनारे के गांव थे, मैंने पूरे के पूरे ओडीएफ किए। तो और जब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आता है तो मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ना, मैं एकेडमिया में नहीं गई हूँ, तो मुझे तो ये समझ में आता कि अगर मैं सही हूं तो वही होना जो मैंने कहा, इतना मुझे समझ में आता है। और फिर जितना मेरा बस चलता है, मैं सामने वाले को पकड़ जाती हूँ कि या तो तुम साबित करो कि मैं गलत हूँ, और नहीं तो तुम वही करो जो कि मैंने कहा है। तो कई बार वो चीज चल जाती है, और कई बार जैसे मेरा पोर्टफोलियो बदल जाता है, वैसा हो जाता है। रमेश, your last question. Sadhvi ji, namaste. This is Ramesh. I'm in USA. If you don't mind, I'll ask my question in English because I'm not very conversant. no, she is very fluent in English. Okay. So, first, I have to thank you at the bottom of my heart for defending Pujya Sri Jayendra Saraswati Swamiji when he was arrested. You are one of the very few people. Dr. Swami is there and you are there. I mean, very few people who came out to support him. So I wanted to thank you, I mean, from the bottom of my heart from that. My only question is, in all this Hinduism, is temple takeover by the government. Dr. Swami is fighting. He laid the foundation stone for how to get rid of the government from the temples in Nataraja case, Chidambaram case. But why are we continuing to see this takeover of temples by the government, even in Uttarakhand? It is very disheartening to see that our very own government is taking over. So how can we give the assurance that we Hindus can, what is wrong? Can Hindus not run their own temples? First thing is that I will never admit that Jayendra Saraswati ji needed any defense. I just went there to tell him that I am with him. He was a very strong person. He was a very learned saint. He was a great saint. And even Bhagwan Krishna had to face a charge, if you remember. Even Yes. Bhagwan Ram had to face a charge. So I don't believe at all that he was meek or he was weak or he needed any defense. No, he did not. I just showed my respect to him. And I was really sorry that those people who were charging him, it was very bad, and they were damaging Hinduism, not Jayendra Saraswati ji. And they were damaging the mutt of Adi Shankar. And the second thing is, as you have told about this Uttarakhand thing, even there was some disagreement in the party itself, but I cannot discuss it open. But I think it was done for the reasons because they thought it will have a better administration. There was one more problem, and the problem was that those who were working in the temple committee, they could not be appointed through the procedure. So they all were ad hoc arrangement. Even the pujaris were facing a problem of not having the pension and other things, and they were living a very miserable lives. So, but still, I believe, and even my party, even in Uttarakhand, people believe this, that this is not good, that the temple should be run by the government institutions. They should have their own independent body. They should have their own independent system. I believe in that. I agree with Dr. Swami totally, and this I expressed to Trivendra Singh Rawat also. Thank you, Ji. Thank you, Didi, for this categorical reply. We all Hindus look forward to you and Dr. Swami for this issue of releasing Hindu temples from government control. We are grateful to that. Jagdish ji, one, Okay. one But last, before we proceed, One more question.
हाँ, Yes, go on. so the other thing I had written down was this attack of Hindus across the nation. I mean, we've been very patient. Sadhguruji, you just mentioned how patient Hindus are. You know, whatever happens, we are continuing to be very patient people, irrespective of what he calls secularism. Embodiment of Hinduism in itself is embodiment of secularism. Dr. Swami always used to say Hinduism means we are by default we are secular in nature, but we are continuously facing onslaught from different states. I don't want to mention one state or the other, but it is difficult. Why are we supposed to keep proving that we are Hindus and we are secular in our own Hindu state? This will take some more time because the country has been totally poisoned by the people, mostly the left thinking people. They are very few in the number right now, but they are very poisonous. Like some poisonous snakes are very few, but they are very poisonous. They had a total control on academia, culture, art, media, and intelligentsia. It was very difficult to remove them from there. It was easy to remove them from the political system, from the bureaucratic system, but it was very difficult to remove them from these places because they were so deep rooted. They were writing history, they were making fun of us. So it will take some more time. And in that, many sacrifices are being done, many people are being killed. But in those states where BJP is ruling, these people are taking care that justice is totally done to whatever happens. You're right, because academia and education system needs to be completely revamped because we have been poisoned literally by the wrong history. Yes, definitely. Thank you. And note that in BJP ruled states there has not been a single communal riot. Yes. There is Even in place like Uttar Pradesh, where people expected communal frenzy after CA and removal of the 370, even after that, the kind of peace and calm was maintained in that state. It proves that they used to think that the people are doing bhajan only. Even Chandrasekhar used really he used to make fun of. "Arey, these guys have come to parliament through Ayodhya movement." Then I had to tell him that, oh no, I did not come through Ayodhya movement. Ayodhya is my conviction. It is not my political conviction. It is my conviction as a Hindu. And you think we don't know anything? We know. And see, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, it's more than 15 years we have been running the government. Can any single Muslim say that he is feeling insecure because we are ruling there? So I think, you know why? Actually, we were used as the fear to scare the Muslims. Narendra Modi's name, Uma Bharti's name, Advani's name, our name was used. So I always used to say, unless we come in the ruling, the fear will not be removed. We have to come in the ruling. So now, luckily, we are in the ruling, the fear will be removed. One last request. One of our VHS members who's a volunteer in the show, Swaminathan, he had met Subhadra Maji, so he wanted to share that with you. So that's what Subhadra ji, I can tell you in the Sorry, we got disconnected. We'll be right back. Hopefully, we should be back. Yeah, I think we should. And she was my Guru Bahan, though she was like my mother because she was 94 and I'm running 61, so there was a big age gap. And she wanted me to perform her last rites. So I went all the way from Delhi to Uttarkasi to perform her last rite. And she was the person which is the, as I have told you, na, as I have told you right now, because I get very emotional when I think about it, that not a male or a female, any male or female saint living 7 kilometers above Gomukh in the cave for 9 years, not even coming down. This is not known in that history, in the mass history. She was the only single person, male or female, who could live in that cave. And it was totally, all the time, it was, I think, more than 11 months, it was totally snow around. And she was there, and she lived there. She was a great tapasvi. People say that these tapasvis live in the cave. What is the use? They don't know that power project where the they are in remote, but the current is coming, the light is coming all over the places.
So these people are power project, like power project. And because of them, the electricity is coming, the light is coming everywhere. She was a great soul. And I'm surprised that I have known her. I have touched with her. She has cooked for me. I cannot believe this. I'm very lucky. See, Dr. Swami likes me so much. And he is so nice to me. His blessings are always with me. And I'm born in a very ordinary farmer family, but I was in the contact of Rajmata Vijayaraje Scindia, Ashok ji Singhal, Datto Pandit Thengdi, Jayendra Saraswati ji, and Dr. Swami. So even Subhadra Mata, I think I feel very blessed. Yeah. Thank you. Arvind Yes. Uma Didi ji, before we end the program, Arvind will do the signing off. I just wanted, because this is the 100th episode, हम चाहते हैं कि हमारे जो टीम है वो हमारे दर्शकों को हम इंट्रोड्यूस करें. So the people who are behind the screen, I just want to ask them to be ready. So we introduce them to the audience, because this is the 100th episode and it's a great moment of joy for all us here in Virat Hindustan Sangam. So our technical team is led by Ashish. Can you come on the line? Yeah, we'll Jagdish ji, we will announce, let them join, and Yeah. Arvind ji, you complete the thing, and as and when you conclude, the others will join and we can introduce the team. Okay, then okay, Arvind, you sign off the program. सबसे पहले तो मैं उमा जी भारती जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं. शायद उनका कनेक्शन We've lost टूट गया है. Arvind, go ahead. Arvind, go ahead, please. हमारा संपर्क चला गया है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि आज हम इस कार्यक्रम का 100वां अंक, और ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि 2 अप्रैल 2020 को हमने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था डॉक्टर स्वामी की प्रेरणा से, और डॉक्टर स्वामी की प्रेरणा से हम दुनिया भर के जितने भी विषय हो सकते हैं, एवरीथिंग अंडर द सन, व्हाटएवर टॉपिक वाज रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, हमने वो डिस्कस किया. और हम अपने आप को एक गर्व महसूस करते हैं कि हमने 100 अंक तक हम पहुंचे. और हमें ये इस बात का बहुत गर्व है कि इस 100वें अंक को विशेष शोभा प्रदान करने के लिए साध्वी उमा भारती जैसी शख्सियत हमारे बीच में आई. हम उनके कृतज्ञ हैं, हम उनके अनुग्रहित हैं, हम उनके एहसानमंद हैं, हम उनके अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं. बहुत सुंदर. दूसरी बात, आज आपने जो बातें कही हैं हमारे दर्शकों के सामने, वो बातें कई लोगों को एक प्रकार से नई बातें लगेंगी. और मुझे लगता है कि राम मंदिर का जो आंदोलन था, उसकी पृष्ठभूमि में जो आपकी प्रेरणा थी, उसको आपने आज रेखांकित किया है. आपने कहा है कि राम मंदिर का प्रश्न कोई सांप्रदायिक प्रश्न नहीं था, ये आत्मसम्मान का प्रश्न था. ये इतनी बड़ी बात आपने हमारे मंच से आज की, इसके लिए अगेन आपका अभिनंदन करते हैं. और पूरे देश में ये संदेश जाना चाहिए कि राम मंदिर का जो प्रश्न था, और जो काशी, उसने आपने काशी और मथुरा को भी उससे जोड़ा, हमारे आत्मसम्मान का प्रश्न है. और आत्मसम्मान के प्रश्न को हमें उतना ही महत्व देना चाहिए. राम सेतु के लिए आपने जो व्याकुलता दिखाई, डॉक्टर स्वामी हमारे साथ हैं, और आप सभी को पता है अशोक और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, इन दोनों की प्रेरणा से ही जो न्यायालय है उसमें हम राम सेतु को बचा पाने में सक्षम हुए. लेकिन राम सेतु आज भी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है. उसके लिए भारत सरकार मोदी जी के पास इस प्रकार का निर्णय है. और अब मुझे आपसे अनुरोध करना है कि कृपया सरकार को ये सलाह दें कि उसको एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित करें. और तीसरी बात आपने जो कही, बहुत बड़ी बात है कि भारत में सभी धर्मों का जितना सम्मान मिलता है, किसी भी देश में नहीं मिलता. और भारत सेकुलर है, तो सेकुलर इसीलिए है कि हम हिंदू हैं. और ये बात डॉक्टर स्वामी जी भी हमारे मंचों से लगातार कहते आ रहे हैं कि वी आर 80%, मोर देन 80% हिंदूज, एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज सेकुलर. तो ये बात आपने हमारे मंच से दोहराई है. मैं इसके लिए अगेन आपका कृतज्ञ हूं, आपका अभिनंदन करता हूं. Jagdish ji, you want to introduce the team? Yes, I take this opportunity to introduce the team. We have with us Swami Nathan from Chennai, who is behind our scene helping us in our program. We have Tejas Navalgul from
Pune, Maharashtra, who is helping us in our activities behind the scene. We have Ishwar Iyer from Navi Mumbai, who is being helpful and doing a lot of our behind the scene activities for our promos. We have Ashish Shetty, who just now not visible. He is from Mumbai. We have Vishal Mehta from मुंबई Mumbai, and he just now not available. And we have Gadgi Rakesh from Karnataka, and who has been very helpful for us. So I thank our team for their support for all the 100 episodes which we have beamed, plus the 21 episodes of Legal Words of Wisdom, and the ongoing 2 episodes which we have completed for Arth Gyan Ganga. So this is thanking Arvind, Ramesh, Dr. Swami, and our guest Sadhvi Uma Bharti Didi for appearing in our program. Thank Dr. you. Swami, मैं any words, एक Dr. बात Swami? और कहना चाहता हूँ उमा भारती जी से। उन्होंने गंगा के प्रश्न पर जो चिंता दिखाई है वो उसमें जन सहयोग की आवश्यकता है, इस बात पर उन्होंने बल दिया है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। वो भोपाल से सांसद रही हैं। भोपाल के एक शायर हैं मंजर भोपाली, उन्होंने गंगा के लिए लिखा है कि हम भी पिए तुम भी पियो, रब की मेहरबानी, और प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। तो ये मंजर भोपाली की इन लाइनों के साथ मैं उमा भारती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हमारे मंच से उठाया, हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। हम इसके लिए उनके बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। डॉक्टर स्वामी के नेतृत्व में हम ये पिछले 100 अंकों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपका सहयोग निरंतर प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हम आपके अनुरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Dr. Swami, any words? Dr. Swami, you conclude? No, nothing. Okay, thank you. Thank you. Thank you, viewers, for being with us for 100 episodes. And we continue our program on every Sunday with Dr. Subramanian Swami on every topic, and on Saturday with Economics, Word of Wisdom, Arth Gyan Ganga. We'll be meeting again on Saturday, March 20th with Arth Gyan Ganga. Till then, Namaskar, Jai Hind. Jai Jai Hind. Hind.